Thanks. जी सचिन जी। Sir, very late evening, good evening, and absolutely hats off for your patience. Continuously one class, another session, and taking it off. We feel jealous. Having that kind of patience. Sir, कल आपने एक point हम लोग के discussion में आया था. Moon in the 9th disturbs the education. Correct. So if I see, then it is the house of Jupiter, and Moon being the lord of the 4th for the Kal Purush, going to the 6th. That was the reason that you have said. Correct. Correct. Or any other reason. वही है चौथा अगर एजुकेशन का है और 6-8 का संबंध बन रहा है, so इसलिए वहां पे जाके अनसर्टेनिटी आ जाती है. Right. So same would be for the health of a mother too. Yes. Okay. Now let's say I was pondering if there's an exchange between Jupiter and Moon. Then would it be कम हो जाएगा वो रिजल्ट असर कम हो जाएगा क्योंकि वो because now Jupiter becomes exalted, but it has gone 8th from itself, and कोई प्रॉब्लम नहीं, ये म्यूचुअल हो गया ना फिर. हाँ, that's what I'm saying. This is mutual. हाँ, तो म्यूचुअल एक्सचेंज हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं. Okay, it will not be counted as 6-8. It will counted as 6-8, but उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी बहुत होंगे. ऑल्दो नेगेटिव ट्रेट्स आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन कम होगा वो, पॉजिटिव ज्यादा होगा. पॉजिटिव ज्यादा. सर एक क्वेश्चन है, it is not for the query, and it is not related to the Vedic, because I have been attending all your Vedic sessions, and to the commitment of the work. Correct. I'm not able to join all your sessions, though I feel like to join, but it's not practically possible to attend all the sessions for me. So if you allow, can I ask something from KP? Because you are a master and... पूछो. There's a concept of tenanted and untenanted planets. बहुत बढ़िया सवाल है, बताओ. नहीं, मेरा क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पे नहीं है, that I'm very much clear. नहीं, बहुत बढ़िया सवाल है, आप पूछो तो मैं आंसर करूंगा, बताइए. Okay. I have gone through the 6 readers set, but I couldn't find this word as tenanted and untenanted or something. So where from it has emerged, and from which Reader's Digest this concept has come from? What the origin? Because I could not see it, though I know the concept, application and all those things is okay. ये कुछ रूल्स होते हैं ना जो टाइम टू टाइम ऐड ऑन हो जाते हैं, ये वो रूल है. और मुझे नहीं पता मेरे से अभी कोई ऐसा जुड़ा हुआ है जो मेरे साथ एडवांस करके जा चुका है, केपी का एडवांस. अगर कोई है तो एंड्रेस करना, मुझे याद नहीं है कि अभी किसी ग्रुप में कोई है. टेनेंटेड अनटेनेंटेड मैं यूज ही नहीं करता. Okay, you don't use it. मैं यूज ही नहीं करता हूँ. उससे ज्यादा पावरफुल जो कॉम्बिनेशन है जो केपी में यूज करना चाहिए, वो है इंडिपेंडेंट ऑक्यूपेंसी वाला प्लेनेट. Correct. Independent hidden houses with blank rashis. हाँ, at the sublord वो level. ग्रह सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाएगा. टेनेंटेड एंटेनेट के कॉन्सेप्ट वो बीच में कहीं से इवॉल्व हो के आया है. इन्हीं के सुपुत्रों ने, उनमें से एक पुत्र है, मैं नाम नहीं जानता, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस Because this independent houses, if the planet at the sublord level, if it goes there and the rashis are blank for these two, then they become independent and they give very strong results. Very strong results, yes. Very strong results. So concept wise, I am okay with it, but I was just saying, I've gone through it. I've never read a word tenanted, untenanted. I should seek the original source for it. So, thank you so much, sir. Thank you. This clarity that this has been an add-on to it. Right. और मैं यूज नहीं करता, एकदम मैं बिल्कुल नहीं यूज करता. सर पर काम करता है, काम करता है, लेकिन मैं यूज नहीं करता. मतलब देखो, करने की कोशिश कर रहा है और उसकी एबिलिटी कुछ और है, उसकी बैटिंग स्टाइल खराब हो जाएगी, तो जो कैपेबिलिटी है वो भी खराब हो जाएगी. जो हमारे इंडियन टीम के साथ एक समय पे हुआ, जब ऑस्ट्रेलियन कोच आए और उन्होंने कई सारे मॉडिफिकेशन करने, इरफान खान को तो एकदम ही खराब कर दिया. ही वाज वेरी गुड बॉलर. yes. ऑलराउंडर के चक्कर में बेचारे को एकदम खराब हो गया. तो ये चीज होती है कि हर इंसान का अपना एक स्टाइल होता है, और इवन आगे जाके आप लोग एक स्टाइल डेवलप करोगे, आप लोगों के
साथ कोई ना कोई एक ग्रह से दोस्ती हो जाएगी, सिर्फ एक ग्रह से प्रिडिक्शन करोगे आप लोग, तो वो चीजें आप लोगों का एक लेवल आ जाएगा धीरे धीरे करके, और वो ग्रह आपसे अटैच होगा। कोई सूर्य से प्रिडिक्शन करेगा, कोई शनि से करेगा, कोई चंद्र से करेगा, तो ये कैपेबिलिटी आ जाती है, अपनी स्टाइल हो जाता है लोगों को। Correct. No, that I understood, that every astrologer or a person has its own unique way of decoding a chart and getting to the crux of the matter. So second thing sir, एक request था starting of the course या पहले भी मैंने किया था सर, एक जो static चीजें होती हैं, जैसे any planet in an XYZ house, how to see it statically when the chart comes to us. So since this is an advanced course sir, ये request मेरा पहले भी था, and this will help us. मैं देखूंगा उसको इंक्लूड करने की, जैसे आप कह रहे हो कि सूर्य पहले घर में, सूर्य दूसरे घर में, ये कह रहे हो सर? देखिए, सूर्य और जुपिटर और सैटर्न की बात इतनी होती है ना सर कि मतलब ऑलमोस्ट वो क्लियर होता है। लेट अस टॉक अबाउट नोड्स। राहु केतु, हाँ, मतलब दे आर द रियल फिशी थिंग्स। बात करेंगे राहु केतु। That if it is in 6, if it is in 4, if it is in 11, we will discuss. They will behave. I will note it down. We will discuss. Yeah. And I'm sure, sir, people are enjoying with you. And I told you yesterday, day before yesterday, I think that that 15 days, 14 days evening were restless for us. That we were not meeting you, we were missing you, and we were wishing कि नहीं आप जल्दी से reconnect होइए. The only thing is, with the paucity of time and other commitments, we cannot join the courses so fast. और उस पे सर आप पेनल्टी लगा देते हैं सर, हम लोग को बहुत दुख होता है, क्योंकि हमको मालूम है कि हम ये कोर्स करने के बाद ही वो टाइम दे सकते हैं। सो एटलीस्ट सर वहां पे अगर कंसिडरेशन हम लोग के लिए रहे, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, सो दैट वी वुड। देखो, मैं आप लोगों को एक अगर कोई इंटरेस्टेड है मोबाइल न्यूमरोलॉजी लेने के लिए, ठीक है, तो मैं आप लोगों को आई गिव लाइक, आज 1 तारीख है, राइट, मैं आपको 7 तारीख तक का समय देता हूँ। इफ यू वांट टू गो अहेड एंड परचेज इट फॉर 5001 रुपीज। उसके बाद we will again sell it out for 10. और सर ये जो अभी कोर्स लोशो ग्रिड का दिया है न्यूमरोलॉजी का, मेरी नीलम जी से भी बात हो रही थी थोड़ी क्लैरिटी को लेकर के, बिकॉज आई हैव नॉट बीन इनटू न्यूमरोलॉजी एट ऑल। आई वाज इनटू प्योर वैदिक एंड लिटिल बिट ऑफ केपी। आप अगर वैदिक और ये किया ना, मैं ये कहूंगा कि मैं अगेन आई डोंट वांट टू लुक पुशी। मैं अभी क्लास में जब वो क्लास कंप्लीट हो रहा था, मैंने इसलिए बोला ये दिस वाज द वन ऑफ द कोर्स आई हैव पुश्ड पीपल टू परचेज दिस कोर्स। और आज भी मैं जानबूझ के इसलिए कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आप लोग खरीदोगे मेरे पास पैसे आएंगे। आप लोगों की जो इच्छा है ना, जो प्रिडिक्शन लेवल बढ़ने की और क्विक होने की, ये कोर्स आपको 100% वो सोल्यूशन देगा। 100%, 1% भी कम नहीं। और अपनी चीज तो हर इंसान बढ़ा के बोलता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि दिस इज रियली वन ऑफ द गुड कोर्स जिसपे आप लोगों को जरूर जाना चाहिए। ठीक है सर, आई विल गो फॉर इट। एंड सर लोशू आल्सो आई विल बी देयर because since it seems little new and unique, something new for me, so I'll definitely come for Loshu also. The only thing is I was trying to understand the difference between a Vedic numerology and this Loshu. Is it the same, different, and how different? Different. अभी जो मोबाइल वाला किया है, that is Vedic numerology. Okay, that is Vedic numerology. Vedic numerology. और अभी जो हम करने वाले हैं, it is a Chinese numerology. Loshu is Chinese. Okay. So it is a Chinese inspiration and इसपे रेमेडीज एंड यंत्र मैं आप लोगों को हाथ से बनाना बताऊंगा, हाथ से कैसे यंत्र बनाना है, और पेपर में बना के दोगे उसका भी इफेक्ट आएगा। तो वो चीज हम लोशो में भी सीखेंगे और वैदिक वाले में भी सीख चुके हैं। वो एक अलग चीज सीखा है उसमें, और इसमें मैं अलग चीज सिखाऊंगा। ओके सर, ये जो वैदिक न्यूमरोलॉजी वाला जो मोबाइल वाला कोर्स था, ये सर अभी कंप्लीट हो गया, स्टिल ऑन? कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया, ओके, देन इट्स बेटर। आई कैन टेक एंड आई कैन सी एट माय ओन। इसका आप लोगों के Q&A के लिए आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा मेन, उस पे हम आप लोगों को ऐड कर देंगे जी। तो वहां पे ज्वाइन करके आप अपने क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। Thank you so much sir for giving a consideration of 7 days, and I'm sure sir most of them would be happy now after listening to you and other people who have done this course. So once again, thank you so much on behalf of everyone, and sir keep guiding us, keep reinforcing the positivity and the knowledge, small things which we tend to miss. And thank you so much sir. Thank you sir. All the thank you very much. Thank you sir. Thank you. Richa ji. नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मैंने
अभी वैसे तो काफी लेट आपको ज्वाइन किया, लेकिन मैंने रेमेडीज एंड वो ट्रांजिट वाले कोर्सेज देख लिए थे। जी, और नक्षत्र का भी मैंने पूरा पढ़ लिया था, और जी, ये वैदिक मैं आपके साथ साथ कर रही हूँ। जी, तो सर मेरे को एक तो ये आपसे पूछना था, अभी के जो हमने रिसेंटली काम किया, जो रेट्रो के रेमेडीज हैं, अगर जैसे सपोज कोई जैसे नीच हो जाते हैं, जैसे मैं अभी मेरे पास एक कुंडली आई थी, उसमें चंद्र एंड मंगल दोनों ही नीच के हैं, तो वो रेमेडीज भी उसमें फिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, हम जो सीख रहे हैं ना, उसमें हम ग्रहों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हर ग्रह का एक प्योर फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, नॉन लिविंग थिंग में और लिविंग थिंग में। तो वो चीजें मैं रेमेडीज में आप लोगों को बताऊंगा, इसी कोर्स में बताऊंगा। तो उनकी मदद से आप ग्रहों को शुभ कर पाएंगे, जो कि करना बहुत जरूरी होता है ना। तो वो चीज हम आगे सीखेंगे। वो चीजें मैं ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकली बताऊंगा, ये ग्रह की चीज ये शुभ करने के लिए यूज करिए। तो आप उसको कहीं पे भी कैसे भी यूज कीजिए, वो ग्रह पॉजिटिव होता जाएगा दिन ब दिन। यस सर, सभी थोड़ी थोड़ी कोशिश तो करते हैं कि अगर जैसे जैसे एक फाइनेंस का एग्जांपल लिया था, या अभी कुछ जैसे और एग्जांपल्स लिया था, तो इस ग्रह का ये आइटम लेके, इसी के इसका दही लेके, इसकी वो कुछ वो बिल्कुल, बिल्कुल। सुबह आज वेडनेसडे तो धनिया पत्ती सबसे पहले खा लो, एंड ऐसे करके राइट, थोड़ी सी ट्राई तो हम करते हैं। राइट। तो थोड़ा सा रेमेडीज में थोड़ा सा भी इतना, जो एक्चुअली जो आप बताते हैं ना दिमाग में, वही है, अपनी तरफ से हमसे इतनी बनती नहीं है रेमेडीज। नहीं, नहीं, बन जाएगी। क्या होता है, कार तत्व जितना आपको अच्छा समझ आ जाएगा, और असर ग्रह का अच्छा है बुरा है वो समझ आ जाएगा, तो आप खुद ही रेमेडीज बना बिल्कुल सर, बिल्कुल। पाएंगे। अच्छा सर, मुझे एक और बात आपसे ये कह रही थी, जो आपने बोला था कि हम क्या चाहते हैं आगे। जैसे नक्षत्र का कोर्स पूरा कर लिया था, अब काफी समझ में आ गया। जैसे अभी सपोज शनि की जैसे दशा आई है, अभी वो घनिष्ठा में है, तो जैसे शनि तो अपन ऐसे कर रहे हैं कि जैसे वो कुंभ में आ गया, तो कुंभ में यहाँ बैठा है, तो फिर इतनी इतनी तीनों दृष्टि से सबको क्या क्या असर देगा हर एक जगह पे। लेकिन अभी जैसे जो शनि है वो अभी तो धनिष्ठा नक्षत्र में है, और मंगल में फिर आपने जैसे नक्षत्रों में उसमें बताया था कि वो एक्सीडेंट प्रोन हो जाता है। उसके बाद में जब वो राहु के नक्षत्र में जाएगा शनि, तो फिर वो हो जाएगा कि वर्कोहॉलिक बनाएगा। फिर उसके बाद में अगर वो गुरु के नक्षत्र में जाएगा, तो वो ज्योतिष के लिए इतना अच्छा नहीं है वैसे। तो ऐसे कहने को तो नहीं, कुंभ ज्योतिष के लिए नक्षत्र अच्छा है। में शनि शनि जब बृहस्पति के नक्षत्र में जाएगा, वो ज्योतिष के लिए अच्छा है। अच्छा है, ओके अच्छा ओके, है, हाँ। ठीक है सर। मुझे लगा कि गुरु के साथ में बैठ के तो फिर ज्योतिष के लिए अच्छा नहीं होगा नहीं, नहीं, ऐसा। अच्छा है, लेकिन ऐसे केस में क्या होगा कि इंसान थोड़ा मतलब ईगो को डेवलप कर लेगा, लेकिन ज्योतिष के लिए अच्छा है। तो सर अब हम शनि को सिर्फ अकेले शनि देखें, या अभी शनि प्लस मंगल देखना है, फिर शनि प्लस राहु है, बिल्कुल, अभी इसे जो कैसे आपने देखना है? चीज बोली है उसको उस डिटेल में ही देखना है, जो अभी आपने बातचीत करी कि शनि का ट्रांजिट अब जो कौन से नक्षत्र में हो रहा है, वो नक्षत्र स्वामी आपके कौन से घर में बैठा है आपकी राशि चार्ट में, उस हिसाब से भी वो असर देता ओके, ठीक है सर। तो मतलब शनि प्लस मंगल प्लस वो जो राशि है, राशि राशि लॉर्ड, इन तीनों है। के जी, अच्छा, ठीक, बिल्कुल। ठीक है सर, काफी क्लियरिटी होगी। सर जी, एक चीज और मुझे पूछनी थी। वैसे तो इसकी क्लियरिटी मेरे को सचिन सर की बातों से ही हो गई थी। जैसे कहते हैं कि वीनस भी 9th हाउस में शुभ फल नहीं देता, तो मे बी इसलिए कि वो वृषभ राशि है, तो उसका वो 8वां घर पड़ा 9th हाउस, इसलिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ये सर ने अभी बात कर रही थी चंद्रमा की, तो मेरे को तभी क्लिक किया कि वीनस का भी शायद यही रीजन होगा। बिल्कुल। तो वीनस 9th में नहीं शुभ है? हाँ, 9th में वीनस अच्छा नहीं होता। ओके ओके, राइट, ठीक है सर। जी, सर और तो सब अच्छा चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। जी, जी, बढ़िया। जी थैंक यू सर, वेरी मच। हाँ सर, थैंक प्रणाम। यू। प्रणाम जी, प्रणाम। सर आपसे मेरा 5th कोर्स है ये। जी, हाँ सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर आप। और जी, ऐसा अटैचमेंट हो गया कि अगर आप नहीं दिखते, अब जैसे वीक में 3 दिन दिखते हैं और 3 दिन नहीं दिखते, तो ऐसा लगता है वो 3 दिन तो हमारे ऐसे जाते हैं। फिर आपको रिकॉर्डिंग्स में देख देख करके जी, जी, थैंक यू सर। मतलब कैसे भी कनेक्ट होना चाहते हैं सर। और लेकिन मेरे साथ क्या है, मैं एक बार में एक ही पढ़ाई कर सकता हूँ। जी, जी, वैसे मैंने सर एडवांस ये बीएनएन भी कर रखा है मैंने, वास्तु भी करता हूँ सर। और जी, वैदिक भी मैंने छोटा मोटा
सीख रखा है, लेकिन वैदिक का डिटेल आपसे मैं सीख रहा हूँ। जी जी। और मेरे पास एक चार्ट आया आज, चार्ट आया जो जहाँ सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, वहां सर मल्टीपल 3+ प्लेनेट थे। ठीक है सर। ठीक है, तो वो रिजल्ट कैसे देगा सर? जैसे एग्जांपल बताइए। जैसे उनके 5th हाउस के अंदर सैटर्न में सैटर्न का ट्रांजिट है, और वहां पर बैठा था सूर्य, शुक्र, बुध, और एक प्लेनेट और था सर, ऐसे वैसे मल्टीपल थे। तो इसको देखने का सबसे आसान तरीका ये है, सबसे पहले वो अपने शत्रु ग्रह को इम्पैक्ट करेगा नेगेटिव, और पॉजिटिव ग्रह जो बैठे हैं उनको मदद पहुंचाएगा। उन ग्रहों के द्वारा उसकी वृद्धियां मिलेंगी। मतलब बुध शुक्र दोस्त है, तो उनके रिलेटेड उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन सूर्य के रिलेटेड उसको दिक्कत आएगी, तो मतलब स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी। लेकिन जो शुक्र है वो पैसा है, शुक्र जो है वाइफ है, शुक्र जो है फैमिली लाइफ है, वहां पे उसको थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा और सर। बुध जो है बिजनेस है, बुध वाणी है, तो इन सब चीजों में जो है शनि के प्रभाव पॉजिटिव होने लग जाए। वहां तो बढ़ा देंगे। और सर जहाँ दृष्टि होगी और वहां मल्टीपल हो तो प्लेनेट, वहां सबको मारेगा वो, चाहे दोस्त हो या दुश्मन। सबको मारेगा। यानी मल्टीपल मतलब वो आदमी तो, इंसान तो वो रोएगा मतलब उस पीरियड में। हाँ, वहां अगर मल्टीपल ग्रह आ गए तो वहां पे वो खराबी करेगा उनमें। ये पूछना था सर। जी बाकी सर आपसे एजुकेशन लेके बहुत अच्छा लगता है। जी एक कनेक्टिविटी होगी जी जी, बिल्कुल सॉल्व की। बिल्कुल, वो बहुत अच्छा बोल इंपॉर्टेंट रहे है हैं जी। सर, सब जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। विजय जी। सर नमस्कार, कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू। हाँ जी सर, आपकी काफी क्लासेस मिस हो गई, बट जी मैं आपसे 2-3 चीजें पूछना चाह रहा था। हाँ मे बी पूछिए। दे माइट नॉट बी रेलेवेंट टू दिस पर्टिकुलर सेशन। हाँ हाँ सर पूछिए। जैसे तो रेमेडीज करते हैं, और जैसे अभी हमने कुछ रेमेडीज करी, चीजें ठीक हो गई, बाद में बैलेंस आउट करने के लिए चीजें उतनी खराब भी हो सकती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जो मिलना है वही मिलना है किस्मत के अकॉर्डिंग। नहीं, ऐसा नहीं है ऐसा? सर, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है हम जो रेमेडीज सजेस्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली देखो लेयर ऑफ रेमेडीज अलग अलग होती है। मैं स्पेशली वो रेमेडीज सजेस्ट करता हूँ जिससे ग्रह शुभ हो रहा है। तो जो कोई भी चीज अगर शुभता में आ जाए, चाहे आप मल्टीपल टाइम करते रहो, वो आपको खराबी नहीं करेगा, वो बैलेंस कर रहा है उस ग्रह को। जब तक हाँ आप जी। कोई भी व्हीकल चला रहे हैं, यू आर इन द बैलेंस, है ना, यू आर इन लिमिट्स, तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा फल ही देगा। तो जब आप वो रेमेडीज कर रहे हो, यू आर बैलेंसिंग दैट प्लैनेट रेगुलरली, इफेक्टिवली, कंटिन्यूअस वे, तो आपको खराबी नहीं करेगा। लेकिन खराबी कौन से उपाय करते हैं, जैसे कि कोई चीज को दबा देना, कोई चीज को जल प्रवाह करना, है ना, कोई चीज को कहीं फेंक देना, मतलब अच्छा। कई तरह की रेमेडीज होती हैं। हाँ, लेकिन कई मैं लोग कहते हैं आपको जैसे कि कब्रिस्तान में या कहीं शमशान में ऐसा कुछ कराओ, ये करेक्ट कराओ, वो करेक्ट करेक्ट, कराओ। तो उनके साइड इफेक्ट आ सकते हैं। वो समय देख के, कुंडली देख के, ट्रांजिट देख के कराए जाते हैं। ओके। सो जैसे एक ये है कि बजरंग बाण है, जो कहते हैं कि इसमें हम लोग हनुमान जी को कसम देते हैं भगवान राम की, तो हम्म उस टाइम तो वो सब कुछ ठीक कर देंगे जो भी है, मतलब कि क्योंकि हम्म वो हमने उनको एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया। हम्म बाद में जब टाइम मतलब नॉर्मलाइज हो जाता है, हम्म तो हमें रियलाइज होता है कि हमें शायद उतनी जरूरत नहीं थी उनको इतना प्रेशराइज करने की। तो हम्म। इज दिस समथिंग वी नीड टू डू ओनली ऑन द नीड बेसिस, और वी कैन डू इट एनी टाइम? हाँ देखिए, बहुत जरूरी होता है ना, तब इस तरह की चीजों पे जाना चाहिए। और जो सहज तरीके से हो, सिंपल तरीके से हो, सोचो ना, प्यार से आपने किसी को बहला लिया, वो मान गया तो बहुत जी, अच्छी बात है। तो आपने किसी को प्रेशराइज करके करवाया, तो उसका इफेक्ट तो लिमिटेड ही हुआ ना एक तरह बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। से। जी। एक सर जैसे कहते हैं कि शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, हम्म। बिकॉज उनका वो एक ये हल्दी इज बेसिकली बिलोंग्स टू वुमेन हम्म ब्यूटी प्रोडक्ट्स। हम्म। तो फिर भी कई लोग कहते हैं कि अगर ज्यादा ही हालत खराब है चंद्रमा की, या वेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर भी वहां पर रखाओ, मतलब कि चढ़ाओ मत, ऐसा सच रखाओ। इज नहीं इट करना है, समथिंग? नहीं करना है, नहीं करना है। ऐसे केस में आप चंदन यूज करें। ठीक है, ओके। चंदन बहुत अच्छा असर देता है जी, वो यूज करो। ओके। जैसे ये सौंफ और गुड़ हल्दी तीनों का मिक्सचर देके उनके अलग अलग पैकेट में रख के आओ ये जो चीज टाइप्स। आप बोल रहे हो, ये सब लाल किताब है, बट दे आर वेरी डेंजरस टू इम्प्लीमेंट। वो बहुत कुछ सोच समझ के करना होता है।
अच्छा। ये जो आप चीज अच्छा, कर रहे हैं ना, लोग क्या करते हैं ना, सुनो मैं ये लास्ट में बताने वाला था कुछ चीजें, थोड़ी देर और आप वेट कर लीजिए, 2-3 सवाल है, दो सवाल कोई और है। बात मैं इसको डिस्क्लोज ठीक है, करूंगा विदाउट रिकॉर्डिंग, ठीक है? कुछ चीज ठीक है, थैंक यू। भूपेंद्र जी। हेलो सर, नमस्कार, कैसे हैं नमस्कार आप? जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सर बहुत अच्छा लगा, आप साल से आपके साथ जुड़ा हूँ मैं भी। जी और जी थोड़ा सा लेजीपन चलता है मेरा। कोर्स तो मैंने जी। बहुत ज्वाइन किए हैं, तो अभी तो 2 पेंडिंग की है। एक तो मॉडर्न वास्तु तो मैंने देखा नहीं, अच्छा, देखा जो ही नहीं आपने अभी तक? कराया था। अच्छा जी। हाँ जी। हम्म होरारी वाला मैंने आधा कर लिया है, उस 5 हम्म, डेज के रह गए थे। वो भी अच्छा, बहुत अच्छा कोर्स है वो भी। जी अब एक तो केपी में ज्वाइन करूंगा, एक तो आपका जी। सोच रहा हूँ लाल किताब का काफी ज्यादा बताते हो, वो कब से हम्म स्टार्ट करोगे कुछ? लाल किताब का जैसे मैंने आपको बताया, लाल किताब की क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, वो एडवांस वाले पे ही आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, और छोटे छोटे वर्कशॉप्स हम आगे प्लान करेंगे, तो जब आएंगे तो अब हम आपको शेयर करेंगे, तो उसमें बस हमारे ग्रुप में उसका मैसेज तो नहीं आया था, कुछ लिंक तो नहीं आया हाँ कुछ वो लाल किताब का? मैसेज, हाँ वो मैसेज नहीं आता क्योंकि उसका रीजन ये है सर, वो कोर्स बहुत महंगा कोर्स है, और उसको अच्छा। मैं इसलिए ज्यादा प्रमोट नहीं करता क्योंकि मुझे ना थोड़ा थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कि किसी को बोले भाई आप 2.5 लाख का कोर्स ले लो, है ना? तो हालांकि वो 2.5 लाख का कोर्स है, हम उसको डिस्काउंट ठीक। में रन कर रहे हैं। उसमें भी लगभग 1 लाख के आसपास फीस है, 1,20,000 रुपीज फीस है उसकी, लेकिन वो वन टाइम फीस है, और वो लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ है, मतलब लाइफ टाइम हम हर महीने लाइव जुड़ेंगे, उसमें जूम सेशंस होंगे, तो उस तरह के मॉडल में है वो। लेकिन वो बहुत लंबा कोर्स है, बहुत डिटेल्ड कोर्स है, इसलिए वो एफर्ट भी ज्यादा है, इसलिए वो कॉस्टली भी ज्यादा है, और इसको इसलिए मैं ज्यादा प्रमोट नहीं करता। जिसको मतलब सीखना होता है वो अपने आप ही आ जाता ठीक है। तो मुझे कैसे ये पूछना था, कैसे सन सॉरी शनि 4th हाउस में आता है, है। तो प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए उस टाइम पे? तो आई थिंक 4th हाउस तो हाँ ले प्रॉपर्टी का ही सकते हैं है, प्रॉपर्टी, हाँ ले सकते हैं प्रॉपर्टी, और दिला ही तो देता है, दिलवा देता है वो। कोई इशू लेकिन जब नहीं है। चौथे, हाँ जब चौथे में आता है, बस करियर पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इसकी तीसरी दृष्टि छठे घर में जा रही है, और 7वीं दृष्टि 10वें घर में जा हाँ रही है, जी। और 10वीं दृष्टि लगन पे जा रही है, तो वो थोड़ा प्रेशर और मतलब एकदम नेक टू नेक वाली सिचुएशन आ जाती है कई बार, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता तो उसके लिए रेमेडी वही वाली, नारियल वाली, गोले वाली, है। वो कर जो सकते हो, रेमेडी अभी बताई थी मैंने आपने रेमेडी शनि की, बताई है, मैंने क्लास में बताई है, वो आप एक बार रिकॉर्डिंग देखना। वो बॉडी के सेंटर में जो मस्टर्ड ऑयल लगाने के लिए, वो भी कर सकते वो तो कर ही रहा हूँ मैं आई थिंक। हो, वो हेल्प बाकी करेगा। आगे रेमेडी बॉक्स के अंदर। हाँ जी। ठीक है, बस। थैंक यू सर, आगे जुड़ते हैं आपके सब कोर्स के साथ। जी जी बाकी लाल बिल्कुल। किताब का भी जैसे होगा तो ज्वाइन करेंगे उसको जरूर, क्योंकि बिल्कुल। ज्यादा रेमेडी में देखा अब लाल किताब से ही देते हैं। हम्म। जब होगा तो उसका भी हम कुछ ना कुछ करेंगे। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके, महेश जी। हाँ सर, अगेन डिस्टर्ब आपको क्षमा चाहता हूँ आपको। जी। हाँ सर, मेरे एक छोटे छोटे 2 क्वेश्चन रह गए थे बताइए। सर। एक तो मैं वृश्चिक लगन के अंदर हम्म 4th हाउस में शनि गोचर कर रहा है, ट्रांजिट हम्म कर रहा है, ठीक है। जी जी। और मंगल 6th हाउस में बैठा है अपनी हम्म स्वयं की मेष राशि में। हम्म अष्टम में सूर्य है मंगल हम्म के नक्षत्र में, हम्म तो सर क्या इम्पैक्ट होगा? ये ना कुंडली आप शेयर करना ग्रुप में, मैं देख के बताता हूँ। सर मेरी खुद की है। हाँ एक बार शेयर कर देना कुंडली ग्रुप में। ठीक है सर। ठीक है, कुंडली शेयर करना और क्वेश्चन शेयर करना जो आप चाह रहे हो, है ना? एक बार देख के मैं बताता हूँ। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन ये था सर मेरा, हम्म कि मैं क्या है, मेरा रियल एस्टेट का काम है सर। जी। तो सर कौन सी कई जगह? है, कौन सी जगह? जयपुर। जयपुर में? जयपुर में। अच्छा। ओके। तो प्रॉपर्टीज में खरीदता बेचता रहता हूँ। तो जी। सर कई बार मैं एग्रीमेंट में मेरे नाम भी करवाता हूँ। हाँ तो मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशनली कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। शनि 9th हाउस। हाँ हाँ हाँ, बात हो ही थी आपकी कुंडली के ऊपर पहले हाँ भी। हाँ, हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कर सकते हैं ना वो। हम्म एग्रीमेंट करता हूँ, रजिस्ट्री में किसी और के नाम करवा देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, मैं ये पूछना था। थैंक यू सर, मैं शेयर कर देता हूँ। जी जी बिल्कुल। विजय जी आपका शायद हो गया, डू यू हैव एनी मोर क्वेश्चन? सर एक छोटी सी चीज थी, जी जी। सॉरी टू डिस्टर्ब यू अगेन सर। कोई हम्म ऐसा चैनल है या कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर आपके सारे कोर्सेज लिस्टेड है? आई नो आपके कुछ कोर्सेज जैसे जी एक्सपेंसिव जी हैं है, मैं पीपल आज नो ग्रुप में नो। भेज दूंगा। आप लोग जहाँ पे कोर्स एक्सेस कर रहे हो दैट इज एस्ट्रोलिमस, उसमें सारे कोर्स है हमें,
और फ्यूचर जो भी मतलब पीछे पुराने पुराने कोर्स भी कुछ और जो ऐड होने हैं वो भी ऐड हो जाएंगे, सारे वहीं पे ऐड हो जाएंगे। क्योंकि आई टोटली अंडरस्टैंड, यू नो, सम पीपल, मतलब एवरीबॉडी हैज देयर ओन रिजर्वेशंस, बट एटलीस्ट हमें पता तो कि ये कोर्स है, हो सके हमारा हाँ उसमें डेफिनेटली इंटरेस्ट। वो सारी चीजें आपको दिखेंगी, एस्ट्रोलॉमस पे आप फोकस रखिए, वहीं सारे कोर्सेज ऐड होते जाते ओके, थैंक यू सर। हैं। जी थैंक यू जी। मधुरिमा जी। गुड इवनिंग सर। जी जी गुड इवनिंग। आपसे मैं लाल किताब के कोर्स से जुड़े थे हम, और तब से लगातार आपके साथ हैं। जी जी मैं प्रोफेशन में नहीं हूँ, मेरा जी प्रोफेशन कुछ और था, जी लेकिन अच्छा लगता है आपके साथ। मुझे ये भी था कि ज्योतिषी में बहुत इंटरेस्ट था फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, लेकिन मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिली थी। मैं गॉड से प्रे करती थी कोई मुझे अच्छा गुरु मिल जाए जिससे कि मैं कुछ जी सीख सकूं और जी 1 to 1 हो सके। तो शायद ये जो कोविड टाइम में ऑनलाइन सिस्टम चला जी उसकी वजह से मुझे जो है आप मिले, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी जी सीख रही हूँ अभी तो जी लगातार। हाँ, होता ही है कि उतना ज्यादा टाइम नहीं डिवोट कर पाते हैं, लेकिन बहुत कुछ आपसे सीखा है, तो उसके लिए थैंक्स करना था। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू सो मच फॉर यू दैट। चलिए तो अगली क्लास हमारी अब मंडे होगी, लेकिन कुछ चीजें हमें डिस्कस करनी है, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।